ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان سید کاظم شرفی ہلال عید پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین میں جانتا ہوں کہ آپ بے صبری سے اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں چاند نظر آئے گا یا نہیں. آپ کس شہر میں رہتے ہیں اس کی فکر نہ کریں. نیوز 18 اردو نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے ہلال عید کا. انشاءاللہ العزیز جہاں کہیں بھی ہمارے رپورٹر اس بات کی اطلاع دیں گے کہ چاند نظر آیا اور وہاں کی چاند کمیٹی تصدیق کرتی ہے تو فوری طور پر آپ کو اطلاع دے دی جائے گی. نیوز 18 اردو پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور ملک کے طول و عرض سے ہمارے تمام رپورٹرز، نیوز 18 اردو کے رپورٹرز ہم سے جڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کی پہلے اطلاع دی جائے گی. سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں چاند سے متعلق. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب قبلہ. ہلال عید میں آپ کا خیر مقدم ہے مفتی صاحب. سب سے پہلے بات کریں گے ہلال عید. یہ جو ہے چاند عید الفطر کا جو دیکھنا ہے، کیا ضوابط ہیں اس کے اور کیا احکام ہیں اس کے سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلال عید، اس کے معنی ہے عید کا چاند. عید کا چاند 29ویں رمضان المبارک کو آسمان کے افق پر دکھائی دے سکتا ہے، اور اگر دکھائی نہ دے، کہیں سے بھی اس کی تصدیق نہ ہو اور کسی قریبی علاقے میں دیکھنے کی شہادت نہ پائی گئی ہو، تب تو پھر 30واں روزہ بھی رکھا جائے گا اور اس کے بعد ہی عید الفطر منائی جائے گی. ہلال عید کے بارے میں اسلامی احکام یہ ہیں کہ اگر مطلع ابرآلود ہو، غبار ہو، دیکھا جانا ممکن نہ ہو، آسان نہ ہو، تو کہیں سے قرب و جوار سے اطلاع آتی ہے اور ایک آدھا فرد، کوئی مرد یا خاتون بھی رؤیت کی اطلاع دیتی ہیں، بشرطے کہ وہ ثقہ ہوں، دیندار ہوں. ان کی اطلاع مان لی جائے گی اور رمضان کا آغاز کر دیا جائے گا. لیکن جب عید کے چاند کی بات آئے گی اور اگر مطلع ابرآلود ہو، غبار بہت زیادہ ہو، آسمان پر رؤیت چاند کی آسان نہ ہو، ممکن نہ ہو، ایسے میں اگر کوئی اطلاع دیتا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تب تو پھر یہاں 2 افراد کی گواہی ضروری ہے. یہاں شہادت ضروری ہے، وہاں پر اطلاع کافی ہے. یہاں شہادت ضروری ہے. شہادت کا نصاب ہے 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 خواتین ہوں جنہوں نے دیکھا ہو چاند کو اور وہ خود اس کی شہادت دیں، اور پھر وہ ثقہ ہوں، دیندار ہوں. عام طور پر ان کا فسق شہرت میں نہ ہو. لوگ عام طور پر ان کو دینداری مانتے ہیں اور ان کا کوئی گناہ یا برائی کا کام ایسے نہ ہوں جو معاشرے میں عام ہوں. تب تو ایسے افراد کی گواہی قبول کی جائے گی اور پھر رؤیت ہلال کی تصدیق کرتے ہوئے عید کے چاند کے ہو جانے کی اطلاع دی جائے گی اور لوگوں سے خواہش کی جائے گی کہ آنے والا دن انشاءاللہ عید کا دن ہے. جی مفتی صاحب گفتگو ہلال عید سے متعلق ہی ہے. لوگ جو ہے تجسس میں رہتے ہیں، 29 روزے ہیں، اب چاند نظر آ جائے گا. اصل کیا حکم ہے اللہ کے اس کے رسول کے احکامات؟ 30واں بھی روزہ ہو جائے، جو تجسس رہتا ہے لوگوں میں، یہ بھی ایک ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایک نعمت ہے. ایک دن اور مل رہا ہے اللہ کی عبادت کا. یقیناً اگر ہم 29ویں تاریخ کے بعد 30واں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں تو یقیناً باعث فضیلت ہے. لیکن اسلام کے احکام کے مطابق جب 29واں چاند ہو جاتا ہے تو ہم کو اس پر بھی خوش رہنا چاہیے. اور 29 کو چاند نہ ہو، افق پر چاند دکھائی نہ دے، تب تو ہم کو اس صورت میں بھی کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے یا ایک دن کے زیادہ ہو جانے کا رنج و غم بھی نہیں کرنا چاہیے. 29واں چاند ہو جائے تو پھر ہم کو اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے. افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اور ایک دن مل جاتا تو اچھا تھا، اور اگر ایک دن مل گیا ہے تو کبھی افسوس بھی نہیں ملنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر حال میں راضی رہے. بندہ راضی رہے، اللہ کے احکام کی تعمیل میں اپنے آپ کو راضی رکھ لے. اور اللہ کے حضور جو کچھ بات ہے وہ بس بندہ راضی ہو کر اسے قبول کر لے، اسی میں اس کے لیے راحت و رحمت ہے. جی مفتی صاحب،
الحمدللہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اور طول و عرض میں اگر ہم دیکھیں تو مطلب بھی بدلتے ہیں. ایسی صورت میں جو علماء نے اس سلسلے میں احکام نافذ کیے ہیں، جیسا کہ دور کے مقام پر نظر آ جائے، کشمیر میں نظر آ جائے کیرلا میں ہم رہتے ہیں، ایسی صورت میں اس سے پہلے ہم بات کریں گے مفتی صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ حیدرآباد کے ہمارے نمائندے جڑ گئے ہیں، انیس الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی انیس، بتائیے حیدرآباد کا مسئلہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل تو بارش تھی، آج کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے کاظم، آج موسم خشک ہے اور یہاں پر آج بارش وغیرہ نہیں ہوئی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق جو کلاؤڈ کور ہے آسمان پر وہ 35% ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مطلع ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ میں فی الوقت یہاں پر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے دفتر پر موجود ہوں، اس کی چھت پر کھڑا ہوا ہوں جو حیدرآباد کے علاقے معظم جاہی مارکیٹ میں جو نامپلی کے قریب ہے وہاں پر موجود ہوں. صورتحال یہ ہے کہ چونکہ آج جو ہے خلیجی ممالک میں عید ہو چکی ہے، تو زیادہ تر عوام کا ماننا یہ ہے کہ شاید کل عید ہو. حالانکہ ایسا ماننا غلط ہے، علماء بھی کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ شاید کل عید ہو. تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو راستہ ہے، یہ جو سڑک ہے، جو روزانہ یہاں پر جو ہے اتنی ٹریفک نہیں ہوتی. یہ راستہ جو ہے وہ پرانے شہر حیدرآباد کی طرف چار مینار کی طرف جاتا ہے. تو لوگ جو ہے جا رہے ہیں چار مینار کی طرف. شاپنگ، آخری جو وقت کی شاپنگ ہے عید کی، یہ مان کے چل رہے ہیں کہ شاید کل عید ہو جائے. اور کافی رش ہے، بہت زیادہ جام ہو رہی ہے یہاں پر یہ سڑک. یہ جاننا چاہیں گے کہ کب تک جو ہے یہاں پر چاند دیکھا جا سکتا ہے؟ وقت کیا دیا گیا افطار کا؟ علماء کب تک فیصلہ لے سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، یہاں پر جو غروب آفتاب کا جو وقت ہے، جو محکمہ موسمیات نے جو متعین کیا ہے وقت، وہ 6:48 ہے. لیکن افطار کا وقت جو حیدرآباد میں وہ مقرر ہے وہ 6:53 ہے. تو شاید اسی جو ہے 6:50 کے آس پاس جو چاند جو ہے نظر آنے کی توقع ہے. ابھی یہاں پر علماء کا جو دفتر ہے وہ خالی ہے، ابھی تک کوئی یہاں پر کوئی بھی جو ہے یہاں ابھی نہیں آئے ہیں. شاید 15-20 منٹ میں وہ یہاں آ جائیں. اور جیسا کہ ہم لوگ ہر سال کوریج کرتے ہیں، اگر کہیں سے چاند دکھنے کی اطلاع آ جائے تو جو تصدیق کے بعد اسے فوراً یہاں پر جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے. ورنہ ایک آدھا پون گھنٹے کے بعد علماء صلاح و مشورہ کرتے ہیں، ملک کے دوسرے حصوں سے معلومات لی جاتی ہیں، اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے. تو اگر چاند نظر آئے تو فوری اطلاع دی جاتی ہے، اگر نہیں تو شاید 7:30 یا 7:45 تک کوئی اطلاع یہاں سے فراہم ہو. کاظم جی انیس، آپ بنے رہیں، ہم آپ سے گفتگو کریں گے. آئیے مزید گفتگو کرتے ہیں. مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے مطلع کی. اگر دور کا علاقہ ہو، ایسی صورت میں جو گواہی آتی ہے تو کیا اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ عام طور پر جہاں وقت ایک ہوتا ہے، اس کے طلوع اور غروب کے اوقات میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، کچھ منٹوں کا فرق ہوتا ہے، تو اس کو ایک مطلع مانا گیا ہے. اسی لیے علماء کی تحقیق یہی ہے. بر صغیر ہند و پاک کا پورا علاقہ ایک ہی مطلع میں ہے اور کچھ تھوڑا سا حصہ شاید اس سے خارج ہو سکتا ہے. اسی لیے اگر ہمارے ملک کا جو حصہ ہے اور ہمارا قدیم جو ہندوستان تھا، اس علاقے سے بھی اگر ہمارے پاس رویت کی اطلاع آ جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کافی. ہم بات کریں گے اس پر مفتی صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ بنگلورو سے ہمارے نمائندے رؤف حلور جڑ گئے ہیں. جی رؤف، بنگلورو میں کتنے بجے افطار کا وقت ہے اور محکمہ موسمیات نے کیا اس وقت جو ہے ظاہر کیا ہے اپنا جو اندیشہ ہے کہ کیا چاند نظر آئے گا یا نہیں؟ جی دیکھیے، شہر گلستان بنگلورو میں 6:43 پر افطار کا وقت ہے، یعنی کہ سورج غروب ہوگا اور یہاں سے جو ہے چاند کے دکھائی دینے کا آج خاص طور پر قوی امکان ہے کہ شوال کا چاند آج نظر آ سکتا ہے. جیسا کہ شہر بنگلورو کے مشہور اخبار روزنامہ سالار اور روزنامہ سیاست میں آج جو ماہر فلکیات، ماہر سائنسدان جو ہیں، ساحر ٹنکری کا بیان شائع ہوا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہلال کی رویت کا قوی امکان.
ان کا کہنا ہے کہ ساحر ٹمکری صاحب کا کہنا ہے کہ کہاں کہاں چاند دکھائی دے سکتا ہے. انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے. ہمیشہ وہ ہمارے پروگرام میں رہا کرتے تھے ساحر ٹمکری، لیکن اس بار جو ہے وہ کسی وجہ سے ہمارے پروگرام میں نہیں آئے ہیں. لیکن ان کا جو بیان آج اخبارات میں شائع ہوا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کہاں کہاں چاند دکھائی دے سکتا ہے. تو میں یہاں پر ہمارے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی مطلع صاف ہوگا، مثلا رائچور، گلبرگہ، چنئی، حیدرآباد، ممبئی، پونا، احمد آباد، جے پور، دلی، آگرہ، کولکتہ وغیرہ شہروں میں چاند نظر آ سکتا ہے. ان کا کہنا ہے ساحر ٹمکری صاحب کا، کیونکہ ان کا جو مطالعہ ہے اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ مطلع صاف ہے ان شہروں میں اور یہاں پر چاند کے نظر آنے کے امکانات زیادہ ہیں. جی رؤف، چاند کمیٹی کے لوگ موجود ہیں. مفتی جی ہم چاہتے ہیں کہ ان سے آپ معلومات حاصل کریں. کیا کہہ رہے ہیں بتائیں. جی دیکھیے، بعد نماز مغرب رویت ہلال کمیٹی کی میٹنگ مرکزی دفتر وقف بورڈ کے دفتر میں ہوگی. اس دفتر کے سامنے ہم موجود ہیں. ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے رویت ہلال کمیٹی کے ارکان یہاں پر آئیں گے. ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب کی میٹنگ کی قیادت میں میٹنگ ہوگی بعد نماز مغرب. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالغفار قاسمی صاحب. تو آپ کا استقبال ہے سر. کہ کیسے جو ہے مطلع شہر بنگلور کا، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ شہر بنگلور کا خاص طور پر مطلع جو ہے ابر آلود ہے، تو آپ کی کیا گزارش ہے عوام سے؟ سب سے پہلے ہماری گزارش یہی ہے کہ عوام جو ہے چاند دیکھنے کا مکمل اہتمام کرے. ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ افطار سے فارغ ہو کر اور نماز سے فارغ ہو کر پہلا کام یہ ہے کہ وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے افطروا لرؤیتہ وصوموا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر جو ہے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرنا ہے. ہم نے رمضان کے شروع میں بھی اہتمام کیا تھا، تو الحمدللہ بہت پرامن طریقے سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور آج الحمدللہ اس کا آج 29واں روزہ ہے. اور بنگلور کے اندر جزوی ابر آلود نظر آ رہا ہے. کوشش کی جائے گی کہ نماز کے بعد جو ہے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور امید قوی ہے کہ انشاءاللہ چاند نظر آ سکتا ہے. جہاں کہیں بھی چاند دکھائی دے تو وہ کیسے اطلاع کریں؟ مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہو یا اضلاع کی کمیٹیاں ہوں، چاند کمیٹیاں، وہ کیسے جو ہے اس کی شہادت پیش کریں؟ اس کا کیا اصول ہے؟ اضلاع کے اندر ہر ضلع میں اس کی برانچز ہیں اور شاخیں ہیں، اور تمام اضلاع والے جو ہیں اس کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، میٹنگ منعقد کرتے ہیں. لہذا اضلاع والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس ضلع میں بھی چاند نظر آتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے اضلاع کے جو دفتر میں میٹنگ ہو رہی ہے یا جہاں بھی منعقد ہوتی ہے میٹنگ، وہ وہاں پر رابطہ کریں. اپنے طور سے کوئی بھی ذمہ دار آدمی ہو یا عوام آدمی ہو چاند کے ہونے کا اعلان نہ کرے. بالکل. اس موقع پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ افواہوں کا بازار بھی گرم رہتا ہے، تو اس سلسلے میں عوام سے کیا آپ اپیل کرتے ہیں؟ میری علماء کرام سے اور خاص طور سے ائمہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ آج مغرب کی نماز کے بعد فوراً اس بارے میں عوام الناس کو آگاہ کریں کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور جس کو بھی چاند نظر آتا ہے اور یہاں اگر بنگلور میں ہے تو بنگلور کے ریاستی دفتر سے جو ہے رابطہ کریں، رجوع کریں. اب اور اپنے علاقے میں اگر کوئی معتبر عالم ہے تو ان علماء سے بھی رابطہ کر کے. تو قاسم صاحب، جیسا کہ مولانا عبدالغفار قاسمی صاحب فرما رہے تھے کہ جہاں کہیں بھی چاند نظر آئے تو وہ فوراً جو ہے رویت ہلال کمیٹی سے رابطہ کریں اور اپنی شہادت پیش کریں. جی رؤف، ہم آپ سے پھر سے بات کریں گے، رابطے میں رہیں گے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پٹنہ سے محفوظ عالم جڑ گئے ہیں. محفوظ سے بات کریں. محفوظ، پٹنہ کا موسم کیا کہہ رہا ہے اور وہاں پر آپ کہاں پر موجود ہیں؟ کتنے بجے افطار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کاظم، ابھی ہم لوگ عمارت شریعہ کے مرکزی دفتر پھلواری شریف میں موجود ہیں اور یہاں افطار کی ٹائمنگ جو ہے 6:37 پر ہے. مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام لوگ کریں گے. جہاں تک مطلع کا سوال ہے تو مطلع پورے طریقے سے صاف نہیں ہے، لیکن عمارت شریعہ نے اپنے تمام دفاتر کو، چاہے وہ بہار میں ہو، جھارکھنڈ میں ہو، بنگال میں ہو، اڑیسہ میں ہو، تمام جگہ پہ الرٹ پہ لگا رکھا ہے کہ کہیں بھی چاند
दिखाई दे तो तुरंत इमारती शरिया का रुयत हलाल कमेटी को बताया जाए। रुयत हलाल कमेटी तस्दीक करेगी और चांद देखने का ऐलान करेगी। हमारे साथ इमारती शरिया के नाजिम साहब हैं, मौलाना शिबली साहब बताया जाए कि क्या तैयारी है आप लोगों की तरफ से और क्या लगता है आज चांद के बारे में? 29 के चांद देखने का एहतमाम हम लोग हमेशा से करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं। और इमारत शरिया जिस तरीके से पूरे एहतमाम के साथ चांद देखने का ख्याल रखती है, इमारत शरिया का जो मरकज़ी दफ्तर है जहाँ भी आप तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान, तमाम स्टाफ, छोटे बड़े कारकुनान मुस्तैद हैं और उनके हाथों में एक लंबी लिस्ट है पूरे हिंदुस्तान के रुयत हिलाल कमेटियों की। और जितने भी हमारे ज़ैली दफातर हैं, बिहार हो, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, तमाम जगहों पे क़ज़ात हज़रात को ख़ास तौर से रुयत हिलाल कमेटियों को मुस्तैद किया गया है कि अपनी अपनी कमेटियों के साथ 29 की शाम को चाँद देखने का एहतमाम फरमाएँ। चुनांचे वो लोग अपने अपने दफ्तरों में मौजूद हैं और वहाँ से इत्तला आ रही है। शामी से हमारे पास इत्तला आनी शुरू हो गई कि हम लोग जमा हो गए हैं और शहर के सरकर्दा अफराद के साथ और जो लोग इस तरह की सरगर्मी से दिलचस्पी रखते हैं उन तमाम के साथ वो लोग। तो आपने देखा कादिम के इमारती शरिया ने अपने तमाम दफातर में ये इंतजाम किया है, बिहार के मुख्तलिफ जिलों में इंतजाम किया है। और आपको बताएं कि जहाँ जहाँ मसला साफ है या चांद ये गुंजाइश है कि चांद वहाँ पे देखा जा सकता है, वहाँ पे खास तौर से इंतजाम है। और लोगों को भी, आम लोगों को भी ये अपील की गई है कि कहीं भी चांद अगर दिखाई देता है तो फिर जो है उसको फौरन इमारती शरिया के उस ज़िले में दफातर हैं वहाँ पे जो है खबर किया जाए। वहाँ से फिर मरकजी दफ्तर में जो है इस बात की जानकारी मिलेगी और फिर इस सिलसिले में कोई मुनासिब ऐलान होगा। जी काजिम जी, महफूज आप बने रहें, हम आपसे बात करेंगे इस सिलसिले में। आइए नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब, ईद के मौके पर हिलाल ईद के जो उसूल बताए गए हैं उससे लोगों को वाकिफ़ कराने के लिए कोई ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए से उलमा इकराम तक वो बात आसानी से पहुँच जा सके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि मुल्क के तूल अर्ज़ में हिलाल कमेटियाँ कायम हैं और वो इस बात का अहतमाम करती हैं ताकि उम्मत को इफ्तराक़ और इंतशार से बचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, रुयत हिलाल की जितनी ज़ैली कमेटियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम कर रही हैं और वो इस मौके पर जबकि रुयत हिलाल का मौका होता है वो सब मुस्तैद हो जाते हैं और वहाँ जुड़ कर बैठते हैं। वहाँ कोशिश की जाती है, लोगों से मुलाकातें की जाती है, आसमान की तरफ निगाहें लगाई जाती हैं। अगर कहीं से चाँद की इत्तला आ जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बात जो शरई अहकामात हैं उनकी तकमील के बाद उसकी इत्तला दे दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मुनज़्ज़म निज़ाम है पूरे हमारे मुल्क के तूल अर्ज़ में जो लायक़ तहसीन है। इसकी वजह से बड़ी आसानियाँ मुयस्सर हैं। जी, कश्मीर से इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ जुड़ गए हैं तसद्दुक़, बात करते हैं उनसे। जी तसद्दुक़, बताइए कितने बजे वहाँ पर अफ्तार का टाइम होता है और क्या एहतमाम किया गया है चाँद देखने का? जी, बात अगर करें जो इफ्तियारी यहाँ पे 7:40 पे होनी है और उसके बाद ही जो चांद है उसकी शायद आना शुरू हो जाएगी अगर नज़र आता है तो। लेकिन अगर हम बात करें जो अभी हम कुछ देर पहले मेरी बात मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिर से हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे उन्होंने अपनी टीम हर जगह रखी हुई है। हालांकि यहाँ सुबह से काले बादल छाए हुए थे लेकिन अभी कुछ देर पहले आसमान साफ होने लगा और हल्की सी धूप निकल आई है। और मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँगा कि वो आपको आसमान दिखाए। आसमान अभी जो हल्का साफ होने लगा है और यहाँ पे, लेकिन बात अगर हम करें तो 7:40 के बाद ही जो इफ्तियारी होगी, इफ्तियारी के बाद ही जो चांद देखने के कवायद है वो शुरू हो जाएगी। और वहीं मुफ्ती आज़म ने कुछ नंबरात भी दिए हैं कि अगर कोई भी शख्स उनको चांद नज़र आता है तो वो उनसे राब्ता कायम करे, उनको बताए कि किस एरिया में उन्होंने चांद देखा है। और यहाँ पे लोगों की अगर हम बात करें, अभी हम ज़ीरो ब्रिज पे हैं और यहाँ पे खुले, यहाँ पे जैसे पिछले साल भी हमने यहाँ से ही चांद देखा था तो यहाँ पे लोग जमा है और वो उनको इंतज़ार है। एक तरफ से उनको इस बात का ज़रूर अफसोस है कि ये माह मुबारक उनसे रुखसत हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनको इंतज़ार है कल अगर ईद होती है, अगर आज शवाल का चांद हमारा नजर आता है तो कल वो खुशियों में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे जो कुछ मतलब कई सालों के बाद अपनी फैमिलीज के साथ घर आए हैं और ईद मनाने के लिए आए हैं। जी, आपसे जानना चाहूँगा। मेरा नाम यासीन है, मैं हिमाचल से हूँ। वैसे तो हिमाचल में मैं रहता हूँ कम से कम 15 साल से। कश्मीर का हूँ मैं,
लेकिन मैंने 10 साल समझो ईद नहीं बनाई थी यहाँ पे ना अपनी फैमिली के साथ। जी, तो आज मैं 10 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आया, अपनी फैमिली के साथ ईद करूँगा। जी तसद्दुक, हम आपसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। तसद्दुक, इस वक्त जो है हम दीगर नुमाइंदगान से भी बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आप प्रोग्राम जिस तरह आपने बताया कि 7:40 के बाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है, इसका जो है हमें अंदाज़ा होगा, वाक़फियत होगी। मतला अबर आलूद है जुज़वी तौर पर, वहाँ पर वादी का जो इलाका है, इस सिलसिले में तसद्दुक ने अभी बताया। गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती साहब, ईद उल फितर के मौके पर और ईद उल अज़हा के मौके पर जो तजस्सुस इसमें रहता है, ईद उल अज़हा में नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जदीद दौर में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है इतनी, चांद की जो कैफियत है उसका जो है अंदाज़ा फौरी तौर पर लगाया जा रहा है। ऐसी सूरत में क्या इस जदीद तकनीक को हम जो है इसके ज़रिए से चांद का ऐलान कर सकते हैं क्या? सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पाक और हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के इजमा की रोशनी में ये उलमा ने राय दी है कि मज़ीद जो आजकल तरक्यात हो गई हैं और टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गई है, उससे इस्तिफ़ादा करके क्या हम रुयत को बीच से हटाकर उस पर हम इत्तेफाक कर सकते हैं और क्या रुयत का ऐलान कर सकते हैं? तो उलमा ने कहा है कि ऐसा दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता हम उससे कोई मदद ज़रूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुल्ली तौर पर उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते। आसमान पर चाँद का देखना बहरहाल लाजिम है, ज़रूरी है। उफ़क़ पर चाँद नज़र आता हो तभी हम रमज़ान के आगाज़ का या ईद के सिलसिले का ऐलान करेंगे, और रुयत को बीच से हटा दें और फिर सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करें, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हो चला है। बहुत से नुमाइंदगान अभी हिलाल ईद में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, बहुत से नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त कोलकाता से शबाना हमारे साथ हैं। क्या सूरत हाल है शबाना, वहाँ पर कहाँ पर मौजूद हैं और कितने बजे इफ्तार वहाँ पर होगा? देखिए, यहाँ अफ्तार अभी भी अजान हो चुकी है और अफ्तार जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे साथ लोग भी हैं जो अफ्तार कर रहे हैं, और साथ ही साथ आज चांद देखने का एहतमाम भी किया गया है। हम अभी कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में हैं। यहाँ से वो चांद देखने का बाज़ाब्ता एहतमाम किया गया है। रहते हिलाल कमेटी के मेंबरान यहाँ बैठे हैं, और क्योंकि अभी अजान हुई है, इफ्तार का वक्त है, और इफ्तार के बाद ही इफ्तार से पहले ही रहते हिलाल कमेटी के मेंबरान ने जो है वो दूसरी जगहों से मालूम किया था कि चांद निकला है या नहीं, लेकिन अब तक जो है चांद की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन अब इफ्तार और नमाज के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो चांद के ताल्लुक से जो खबरें ली जाएगी। खासकर बंगाल का जो सुंदरबन इलाका है, मुर्शिदाबाद इलाका है, वहाँ चांद की जो है वो पहले खबर आती है। वहाँ भी बाज़ाब्ता एहतमाम किया गया है। रहते हिलाल कमेटी के लोग वहाँ भी बैठे हैं, और जैसे ही कोई खबर आती है तो कोलकाता में सबसे पहले कोशिश होगी कि न्यूज़ 18 उर्दू कोलकाता से अगर कोई चांद की खबर आती है तो वो अपने नाज़रीन शबाना हमेशा तरीका भी रहा है, कोलकाता से सबसे ज़्यादा पहले और गुवाहाटी से खबर आती है। ये बताएं कि दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर कोलकाता के मुर्शिदाबाद और सुंदरबन, वहाँ की सूरत हाल कैसी है, मौसम कैसा है वहाँ का? देखिए, कल मौसम अब्र आलूदा था, लेकिन आज जो है वो मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है, और अगर चांद निकली तो ज़रूर जो है वो दिखाई देगी। हम नहीं कह सकते कि जो है अब्र आलूदा और क्लाउडी वेदर है, बल्कि मौसम बिल्कुल साफ है, और चांद निकला तो ज़रूर लोग देखेंगे और जो है उसकी खबर आएगी। कितने बजे तक पहले सुंदरबन के इलाके के कितने बजे तक इत्तला आ सकती है, वहाँ का जो टाइम है? देखिए, जो वक्त है वो 5:30 बजे से ही देखने का, जो रहते हिलाल कमेटी के मेंबरान जो है वो एक दूसरे से राब्ते का सिलसिला शुरू कर देते हैं, और अभी भी यहाँ वैसे ही मीटिंग भी चल रही है। लेकिन जो मेन जो खबर आती है वो 6:30 बजे से 7 बजे के अंदर, कह सकते हैं कि 6:30 से 7 के दरमियान, 7:30 के अंदर जो है वो खबर आती है कि चांद के ताल्लुक से, क्योंकि एक जगह से खबर आती है उसके बाद जो है वो दूसरी जगहों से भी उसकी तस्दीक ली जाती है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगर चांद निकला तो वो ज़रूर दिखाई देगा बंगाल और कोलकाता के इलाकों में, और ज़रूर इसकी खबर जो है वो नाज़रीन तक पहुँचेगी।
جی شبانہ آپ بنے رہے، ہم آپ سے بات کریں گے اس سلسلے میں مزید. جیسا کہ آپ نے بتایا افطار ہو چکا ہے، تھوڑی دیر میں اطلاع آ سکتی ہے، ہم پھر سے آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. آئیے ناظرین گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی آئیے کیرلا چلتے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے. علماء کیرلا کے وہاں پر موجود ہیں. جی اس وقت کیرلا سے ہمارے نمائندے جڑ گئے ہیں، میں چاہوں گا ان سے بات کریں. ہلو جی ہم چاہتے ہیں کہ کیرلا میں چاند دیکھنے کا کیا نظم رکھا گیا ہے اس وقت. ہاں یہاں بولتا ہوں، جی چاند دیکھنے کا کیا نظم کیا گیا ہے نظم تو یہ ہے، ہاں یہاں تو نظم کیا تھا کل دیکھنے کے لیے. یہاں کا قاضی ہے، ہر ایک جگہ کا قاضی ہے، کالی کٹ، کانور، کاسرکوٹ وغیرہ قاضی ہے. جی وہ قاضی کے ماتحت دیکھنے کے لیے آدمی کو رکھا تھا. کل نہیں دیکھا، اس لیے آج بھی رمضان ہے ادھر. جی کیا اس وقت وہاں پر کیا کل عید منائی جائے گی؟ انشاءاللہ کل عید بنا جائے گا. جی کیرلا میں 30 روزے ہو گئے ہیں مولانا. کل نعم جی کیرلا میں 30 روزے ہو چکے ہیں آج. کیرلا میں تو عید آج نہیں ہے. جی ہر جگہ آج رمضان ہے. جی کل انشاءاللہ جی ہر جگہ کیرلا، کرناٹک، سب جگہ عید ہے. جی آج کون سا روزہ ہے بتا سکتے ہیں کیرلا میں؟ چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ بات کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے. آئیے حیدرآباد میں اس وقت انیس ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. جی انیس بتائیں، علماء کرام کا سلسلہ آنے کا شروع ہوا تھا، کسی سے بات ہوئی ہے اس وقت آپ کی؟ جی کاظم، ابھی علماء کرام کا جو اراکین ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے، ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سید کامل پاشا شتاری صاحب، جو رویت ہلال کمیٹی کے ایک ذمہ دار ہیں. آئیے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بار جو شوال کا چاند ہے اس کو دیکھنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں. بتائیے مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے صدر مجلس علماء دکن کا یہ جو اہم اجلاس ہے، جو آج 29 کے دن یہاں حسینی بلڈنگ افضل گنج پر رکھا گیا ہے، موزم جاہی مارکیٹ پر. اس میں تمام ارکان آلریڈی یہاں آنا شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں اہم یہ ہے کہ یہاں پر 80 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے بھی یہاں پر ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ان سب کو آج دوپہر میں اطلاعات دی جاتی ہیں کہ وہ اپنے فون کھلے رکھیں، اور جیسے بھی جہاں سے پر بھی جیسے بھی ان کو کوئی اطلاع ملتی ہے شہادت کی تکمیل کرنے کے لیے یہاں پر مفتیہ اکرام کو فون کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دلی، بامبے، پٹنہ اور بہار میں ہمارے جو انتظامی کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے سے ربط قائم کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کا ہمارے کو بڑا تعاون رہتا ہے میڈیا کا، جو ہر وقت پل پل کی خبر ہم کو ہر جگہ کی دیتے رہتے ہیں. اسی سلسلے میں یہاں پر علماء کرام اپنے شہادت کی تکمیل کے حساب سے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا مسئلہ یہاں حیدرآباد کا کلاؤڈی ہے، جب یہاں کے جو شرعی احکام ہیں وہ کلاؤڈ میں تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں. اسی سلسلے میں اس کی شہادت کس انداز سے ہونا ہے وہ علماء کرام نیچے بیٹھ کر ابھی اس کی تفصیلات ڈسکس کریں گے. یہاں پہ اوپر میں ینگ جنریشن آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں، آج کا مسئلہ کس انداز کا ہے وہ ان کے ساتھ میں جا کے شیئر کرتے ہیں. پھر وہ آگے کا ہم کو جو حکم دیتے ہیں اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے. جی تو دیکھیے کاظم، یہاں صورتحال یہ ہے کہ
अभी उलमा के आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, और यहाँ पर इंतज़ार है कि चांद दिखाई दे, कहीं से कोई इत्तला मिले और ऐलान हो। जी अनीस, बात करेंगे आपसे जैसे ही इसका वक्त होगा। आइए नाज़रीन, अब मुंबई चलते हैं, वहाँ पर मुहियुद्दीन हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मुहियुद्दीन, मुंबई में क्या सूरत हाल है, मतला कैसा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो है वो मतला अब्र आलूद नहीं है, मतला साफ है, और ये गुंजाइश की जा रही है, ये गुंजाइश लगाई जा रही है कि मतलब इस मरतबा जो है मुंबई के आसमान पर जो है वो चांद का दीदार हो सके। मुंबई रुयत हलाल कमेटी ने जो है वो बाकायदा ऐलान किया है कि मुंबई और अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ पर चांद देखने की कोशिश करें, और चांद देखने की कोशिश के साथ साथ जो है वो इसकी इत्तला जामा मस्जिद मुंबई रुयत हलाल कमेटी को फराहम की जाए, ताकि इसकी बुनियाद पर ऐलान किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद जो है वो रुयत हलाल कमेटी की मीटिंग होती है, और उसके बाद जो है बाकायदा चांद का ऐलान होता है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दीगर इलाके कल्याण, भिवंडी, मालेगांव, औरंगाबाद, नासिक में भी जो है वो चांद देखने का एहतमाम किया जा रहा है, और बेसब्री से चांद का इंतजार किया जा रहा है। हम मुंबई के इस्लाम जिम खाना में मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि मतलब साहिली इलाका यहाँ पर है, और साहिली इलाकों पर भी जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं चांद देखने के लिए। और चर्च गेट से मरीन ड्राइव से लेकर के जो है वो नाला सुबारा तक जो साहिली पट्टी है, यहाँ पर जो है वो उलमा कराम को खास तौर पर इस बात की हिदायत दी गई है कि वो चांद देखने का एहतमाम करें, और चांद जैसे ही दिखाई देता है वो पहली फुर्सत में रुयत हलाल कमेटी को आगाह करे। इस मुतालिक जो है वो हाजी अली से लेकर के वदली के इलाके में भी चांद देखने का एहतमाम किया गया है, क्योंकि इसकी मरकजी कमेटी जो है वो जामा मस्जिद में बैठती है, और वहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका होता है, और जामा मस्जिद में मीडिया को परमिशन नहीं है, तो इसी बुनियाद पे जो है वो साहिली इलाकों पर हम यहाँ मौजूद हैं और चांद को देखने की कोशिश में है। जी मुहियुद्दीन, कब तक इत्तला आ सकती है मुंबई वालों को, चांद की आखिरी इत्तला कब तक मिल सकती है? जी देखिए, मुंबई वालों की अगर बात की जाए, तो मुंबई को जो है वो इत्तला मिल सकती है मगरिब की नमाज के बाद, क्योंकि मतला जो है वो यहाँ पर नीम अब्र आलूद फिलहाल होता दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ साथ जो है वो चांद दिखने का जो एक मौसम जो बनता है वो मगरिब के बाद ही माना जाता है, बन पाता है। तो इसी बुनियाद पर मगरिब के फौरन बाद जो है वो चांद देखने का जो है वो चांद यहाँ पर दिख सकता है, और लोगों की उम्मीदें बढ़ा सकती है, क्योंकि मसाजिद में भी ऐलान कर चुके हैं, ईद की नमाज का भी ऐलान हो चुका है कि ईद जो है वो कल होने वाली है, सऊदी अरब की मुनासिबत से जो है वो ऐलान हो चुका है। बस यहाँ के लोगों को जो है वो दीदार चांद का ही। ठीक है मुहियुद्दीन, आपसे बात करेंगे, इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात हासिल करते रहेंगे। आइए नाज़रीन, इस वक्त रांची वालों के लिए हम जो है अपने नुमाइंदे से बात कर रहे हैं। देखिए नौशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नौशाद, क्या सूरत हाल है रांची में, मतला कैसा है और कितने बजे इफ्तार होगा वहां पर? देखिए काजिम, अभी मतला तो बिल्कुल साफ नहीं है। अब से थोड़ी देर कबल जो है शदीद बारिश हुई है यहाँ पे, उसके बाद जो है यहाँ पे हालांकि अब आसमान जो है कुछ साफ हुआ है। अभी मगरिब की आज़ान जो है शुरू हुई है काजिम, हो सकता है कि आपको आवाज़ में नहीं पहुँच पा रही हो, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, चूँकि अभी आज़ान हो रही है और लोग रोज़ा इफ्तार जो है में लगे हुए हैं। और हम थोड़ा अपने कैमरामैन से ये गुजारिश करेंगे संजीव कुमार जैसे कि वो जो है दिखलाए आसमान की वो हालत, वो किस तरह यहाँ पे अब्र का वो जो है वो पूरा जो है छाया हुआ है। आसमान कुछ साफ हुआ है बारिश होने के बाद, लेकिन वो पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से रांची की खुसूसियत है, खास तौर से ये देखा गया है कि पल में बारिश होती है, पल में जो है धूप निकल आती है, तो अब ये इम्कान है कि थोड़ी देर में बादल आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा और चांद का जो है जो मुमकिना जो चांद का जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो उसका दीदार हो पाएगा। जी नौशाद, इस वक्त आप कहां पर हैं और किसी से बात हुई है उलमा से, क्या एहतमाम किया गया है चांद देखने का?
جی ہم یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ درگاہ جو قطب الدین شاہ رسالدار بابا کا درگاہ ہے یہاں پہ ڈورنڈا میں، اس کے بغل میں جو ہے نا وہ مسجد ہے جہاں پہ اذان کی آواز آپ کو مل رہی ہوگی. یہاں پہ علماء اکرام ادارہ شریعہ کے یہاں پہ موجود ہیں کافی تعداد میں، وہ جو ہے نا اہتمام کرتے ہیں خصوصی طور پہ. ہم جو ہے نا یہاں پہ قطب الدین رضوی ہیں ناظم اعلیٰ ادارہ شریعہ کے، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہلال عید کے تعلق سے جو ہے کس طرح کا اہتمام کیا گیا. حضرت یہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے کس طرح سے اہتمام کیا گیا پورے رانچی اور ساتھ ادارہ شریعہ جھارکھنڈ میں ہم تمام قاضیان شریعت مفتیان کرام چاند دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا بادل ہے، امید ہے کہ چاند نظر آ جائے گا، امکان ہے. اور پورے جھارکھنڈ میں 40 مقامات میں چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں پہ مفتیان کرام، قاضیان شرع، علماء کرام چاند دیکھ رہے ہیں اور سارے لوگ مستعد ہیں. جیسے ہی چاند کی خبر آتی ہے فوراً ہمارے یہاں قاضیان شریعت کی میٹنگ ہوگی اور جیسا ہوگا اعلان کیا جائے گا. تو تھوڑی دیر میں یہ مسئلہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ کہ چاند دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا. آج 29 تاریخ ہے، اگر چاند دکھا، ثبوت ملا تو کل عید ہوگی، نہیں تو پھر 30 کا پورا کیا جائے گا. ابھی تو چاند نظر آنے کا وقت ہے. ابھی اگر رانچی میں جو ہے وہ چاند کا دیدار نہیں ہو پاتا ہے اور دوسری جگہوں پہ جو ہے شہادت اگر ملتی ہے تو وہ کس طرح سے آپ یقین کریں گے اس پہ اور کس طرح سے اس پہ اعتبار کریں گے؟ کون سے ریاست جھارکھنڈ میں تو جو قاضیان ہیں، ہر علاقے میں قاضیان ہیں، ان کے ہاں گواہی ہو جائے گی، پورے جھارکھنڈ میں نافذ ہو جائے گا. البتہ جھارکھنڈ سے باہر اگر ہو تو دلی ہے، بنگلور ہے، چنئی ہے، بمبئی ہے، دوسری جگہوں پہ ہمارے دو عالم مستعد ہیں اور ضرورت پڑے گی تو ہم وہاں سے بذریعے جہاز، ہوائی جہاز بھی شہادت شریعہ منگا سکتے ہیں. اس کا انتظام ادارہ شریعہ نے کیا ہے اور پورے ملک میں ادارہ شریعہ ہے اور ادارہ شریعہ کے قاضیان اور رویت حلال مرکز جو ہمارا وہ دیکھ رہا ہے. اور امید ہے کہ کہیں بھی ملک کے کسی بھی حصے میں چاند ہوگا تو شہادت وہاں سے حاصل کر کے، ثبوت حاصل کر کے پھر اعلان کیا جائے گا. کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جو شہادت جس شخص کو جو ہے وہ اگر دیدار ہوتا ہے تو وہ شہادت کے لیے وہ بذریعے جو ہے جہاز یہاں پہ آئے؟ کیا ذرائع ابلاغ کا جو ہے سہارا نہیں لیا جا سکتا جو کہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سے اگر وہ شہادت پیش کرتے تو کیا وہ قابل قبول نہیں ہوگا؟ وہ یہ چونکہ گواہی، لفظ گواہی شریعت میں ہے اور شہادت کے لیے ضروری ہے گواہی کے لیے، چاہے دنیاوی کوٹ ہو یا شرعی کوٹ ہو، کہ باضابطہ حاضر ہو کر، بنفس نفیس حاضر ہو کر جج کے پاس، قاضی کے پاس گواہی پیش کرے. ہما شما کے پاس، ہر شخص کے پاس گواہی جانا ضروری نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کے پاس تو گواہی ہونی چاہیے. اور یہ کوئی بھی کوٹ نہیں مانتا کہ ٹیلی فون سے گواہی لے لیں یا فیکس سے گواہی لے لیں، ذرائع ابلاغ سے گواہی لے لیں. نہیں، بنفس نفیس حاضر ہونا ہے. تو جو قاضیان شرع ہیں ان کے پاس گواہی ہونا ضروری ہے. تو قاضی میں مفتی صاحب کا واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ریاست جھارکھنڈ میں 40 مقامات پہ ایسے ذمہ دار شخصیات کو جو ہے وہ متعین کیا گیا ہے اور وہ جو ہے نا شہادت دیں گے. اگر وہاں پہ بھی چاند کا دیدار نہیں ہو پاتا ہے تو دیگر شہروں میں، جو ملک کے دیگر شہروں میں جو ذمہ داران ہیں وہ جو ہے اگر وہ ان کی شہادت ملتی ہے تو وہ ان کی شہادت کے بنیاد پہ یہ جو ہے نا وہ اعلان کیا جا سکتا ہے. جی نوشاد آپ بنے رہیں، ہم آپ سے بات کریں گے، اس سلسلے میں تفصیلات حاصل کریں گے. ناظرین، دلی سے ریاض ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ریاض، کیا صورتحال ہے دلی میں اس وقت اور آپ کہاں پر ہیں؟ جی کاظم بھائی، اس وقت میں دلی کی جو شاہی مسجد ہے جو مغل بادشاہ شاہجہاں نے تعمیر کرائی تھی، جامع مسجد، اس میں موجود ہوں اور الحمدللہ مطلع یہاں پر صاف ہے، پوری طرح سے آسمان صاف ہے. ابھی میری جو یہاں کی ہلال کمیٹی ہے ان سے بھی بات ہوئی تھی تو یہاں پہ کیا ہے کہ 7:15 بجے کے آس پاس افطار ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز ہے اور مغرب کے بعد جو ہے پھر جو ہے یہاں کمیٹی بیٹھے گی اور سبھی کو یہاں پہ باقاعدہ دلی کے لوگوں کو اناؤنسمنٹ کر کے گزارش کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی آسمان پہ عید کا چاند دیکھے تو فوراً مسجد کمیٹی کو اطلاع کرے. میں لگاتار ان سے رابطے میں یہاں قائم ہوں، پوری طرح سے ہمارا رابطہ بھی ان سے بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی ان سے پھر اور کچھ انفارمیشن ہمیں ملے گی. آخری کیا وقت دیا ہے علماء نے وہاں پر چاند نظر آنے کا؟ کب تک اعلان کیا جا سکتا ہے؟ پچھلے وقتوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 9 بجے بھی کئی مرتبہ یہ ہوا کہ جب مطلع صاف نہیں ہوا تو ہندوستان میں جو اور جگہ پہ ان کے جو بھروسے کے لوگ ہیں ان سے پتہ کرنے کے بعد یہ پھر ایک فیصلہ لیتے ہیں کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. لیکن پھر بھی آج کیونکہ مطلع صاف ہے تو اس لیے مجھے امید ہے کہ 7:45 بجے تک، 7:30 بجے تک یہ اپنا جو ہے فیصلہ سنا دیں گے کہ کل عید ہے یا نہیں اور چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. جی ریاض، ہم آپ سے بات کریں گے. ریاض، تفصیلات حاصل کریں گے، آپ بنے رہیں. ناظرین، یہ تھے دلی سے ہمارے نمائندے ریاض ملک، بتا رہے تھے کہ
7:45 बजे तक भी हो सकता है। मतलब तो साफ है, दिल्ली में वहाँ की जो कमेटी है, चांद कमेटी, वो इस बात का फैसला ले सकती है अगर कोई इत्तला पहुँचे या वो लोग वहाँ पर देखें। तकरीबन हमने बहुत से नुमाइंदों से बात की। आइए, इस वक्त भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम मौजूद हैं। जी मेहताब, बताएं क्या सूरत हाल है भोपाल में, मतला किस तरह का है? फिक्स कर जल्दी। काजिम, हमें बता दें कि भोपाल की इस वक्त हम तारीखी मोती मस्जिद पर मौजूद है, जहां पर रुयत हिलाल कमेटी के मेंबरान के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 7:15 बजे यहां पे मगरिब की नमाज होगी, उसके बाद यहां पे चांद देखने का जो है सिलसिला शुरू किया जाएगा। यहां पे पूरी तैयारियां, तमाम लोग यहाँ के आने सिलसिला शुरू। हर शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह ने जो उसको मुबारक मौका दिया था, उसमें जिस तरह से उसने रोज़े रखे हैं, रोज़े के बाद जो है ईद का जो मौका है उसकी तैयारी ज़ोर शोर से की जाए। इस वक्त हमारे साथ जो है मसाजिद कमेटी जो है उसके सेक्रेटरी एस एम सलमान साहब मौजूद है। उनसे सलमान साहब, क्या तैयारियाँ की गई? आज जैसा आप सब जानते हैं कि 29 रमज़ान मुबारक है, और जैसा कि बाहर के मुल्कों से हमें इत्तला मिली हुई है कि वहाँ ईद हो गई है, तो हम इस बात का एक्सपेक्ट करते हैं कि करीब 99% यहाँ पर चांद होने की उम्मीद है आज। उसके लिए हमने यहाँ पर एक तो जो आने वाले विज़िटर्स हैं उनके लिए इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। जो भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेके आएंगे, हम मसाजिद कमेटी की तरफ से सबको इफ्तार कराया जाएगा। उसके बाद हम उलमाए दीन, शहर कादी लोग भी आएंगे। जी हाँ, सबसे काजी साहब जो हैं हमारे, वो तशरीफ़ लाएंगे, नायब काजी तशरीफ़ लाएंगे, नायब मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाएंगे। मुफ्ती साहब जो अब्दुल कलाम साहब हैं वो इतिकाफ़ में बैठे हैं, इतिकाफ़ ख़त्म होने के बाद वो तशरीफ़ लाएंगे। इधर का हम देखते हैं कि मसाजिद कमेटी ने यहाँ पे तैयारियाँ कर रखी हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है तमाम मेम्बरान आ जाएंगे, और मतला की अगर उसकी बात करें तो मतला साफ़ है। जो है दोपहर तक ज़रूर ये समझा जा रहा था कि मतला अब आलूद है, लेकिन इस वक्त मतला साफ़ हो चुका है, और तमाम लोगों की कोशिश है कि जो 29 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं अगर कोई, और सिर्फ मसाजिद कमेटी ने, भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश में गुजारिश की गई है कि जहाँ भी लोगों से मुमकिन हो सके वो चाँद देखने का एहतमाम करें, और जैसे भी उनको इत्तला मिलती है वो रुयत हिलाल कमेटी को इससे बाखबर करे ताकि उसकी रोशनी में कोई फैसला किया जा सके। हम आपसे बात करेंगे। आइए नाज़रीन, इस वक्त जयपुर से अरबाज मौजूद हैं, अरबाज से बात करते हैं। जी अरबाज, बताएं जयपुर में किस तरह का मौसम है? बहुत से हिंदुस्तान के हिस्सों में कहीं मतला साफ है, कहीं मतला अबर आलूद है। जयपुर का क्या हाल है? देखिए, जयपुर के अंदर मतलब पूरी तरह से साफ है। जिस तरह के हालात हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी एक महीने का जो यहाँ पर रमज़ान का दौर गुजरा है, इस बार बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्तिहान हुआ है रमज़ान के दौरान। 45 से लेकर के 47 और 50 तक यहाँ पर टेम्परेचर रहा है राजस्थान में। और अभी भी ये है कि 7:20 पर यहाँ पर मगरिब का वक्त है, इफ्तार होगा, उसके बाद में यहाँ पर जो है तैयारियाँ की जाएंगी। मेरे ठीक पीछे दारुल इफ्ता है, जामे मस्जिद है, जहाँ पर जो जिम्मेदारान हैं हिलाल कमेटी के, वो पहुंचेंगे, बाकायदा मीटिंग करेंगे। आसमान का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आसमान पूरी तरीके से साफ है, अबर आलूद नहीं है, और जिस तरह के हालात हैं अभी कुछ देर में यहाँ पर जो है सनसेट होगा, और सनसेट के बाद में मगरिब की अजान होगी। आसमान में कुछ नज़र आएगा क्योंकि रोशनी काफ़ी तेज़ है, सूरज पूरी तरह से अपने यहाँ पर रोशनी फैला रहा है, गर्मी फैला रहा है। तो अभी जिस तरह के हालात हैं आसमान के अंदर, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही अगर कोई साइन दिखेगा यहाँ पर क्रिसेंट का या मून का, तो वो सबसे पहले हम यहाँ से बहुत आसानी से देख पाएंगे। और जामे मस्जिद में यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि कुछ यहाँ पर मामले इस तरह के हुए थे, उसके बाद में जो काफ़ी सेंसिटिव हालात थे, तो पुलिस भी बाकायदा पूरी तरह से एक्टिव है, पूरे शहरों में, बाजारों में जायजा ले रही है। फिलहाल तैयारियां यह है कि जो लोग हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गल्फ के अंदर आज ईद मनाई जा रही है, कल चांद हो गया था, और आज तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि 29वां चांद होगा और आसमान के अंदर से उन्हें जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और जिस तरह से जो लोगों के अंदर जोश है, जज्बा है, कुछ ही देर में यहाँ पर मगरिब का वक्त होते ही लोग छतों पे चढ़ेंगे और यहाँ पर जो रमजान ईद का जो चांद है उसे देखने की कोशिश करेंगे। जी अरबाज, आप बने रहें, हम इस सिलसिले में मजीद आपसे तफसीलात हासिल करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। आइए इस वक्त गुंजन गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गुंजन, बताएं गुवाहाटी में टाइम क्या है इस वक्त, और अफ्तार का क्या टाइम बताया गया, और चांद देखने का क्या एहतमाम है?
जी बिल्कुल। और गुवाहाटी का अभी तो चांद निकलने का टाइम तो कभी हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आया है कि चांद कहाँ दिख गया है। हमारे दर्शक जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर में ही पहले चांद और सूरज का दीदार होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आया है। जो यहाँ का जो केंद्रीय जो हिलाल कमेटी है, हिलाल कमेटी का जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ है, तो आपके पास ऐसा कोई खबर आया है चांद की? जी नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आया है। हम लोग खबर ले रहा है असम से, लेकिन असम अभी हम लोग का टाइम हो गया चांद निकलने का, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आया, क्योंकि यहाँ मौसम ख़राब है। बारिश हो रहा था, कल रात पूरा बारिश था, आज भी मौसम ख़राब है, इसलिए यहाँ चांद देखना थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन अभी हम लोग बैठ रहा है क्या, अभी देखता है असम में अगर कहीं से खबर आ गया तो हम लोग फौरन ऐलान कर देंगे, वरना हम लोग भारत देश का दूसरा स्टेट से हम लोग खबर लेंगे। और इफ्तारी अभी आप लोगों का ख़त्म हो गया है, और हमें पता चला है कि जो अरब में तो आज वह हो चुका है, तो अगर गुवाहाटी में या पूर्वोत्तर में आज चांद नहीं दिखे तो आप लोग दूसरे कौन कौन कमेटी से अभी आप लोग कांटेक्ट किया है? जी ऐसे तो एक अफवाह चल रहा है कि अरब में हो गया है, यहाँ में भारतवर्ष में होगा, इससे बात नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में चांद दिखने पड़ेगा। लेकिन इस मालूमात में हम लोग अभी पूरा स्टेट में खबर लगा, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ जहाँ सेंट्रल हिलाल कमेटी दिल्ली है, जैसे देवबंद है, पटना है, और दूसरा बेंगलोर है, सब में हम लोग खबर लेगा। कहीं में तो कहीं तो खबर निकलेगा ही, जैसे कलकत्ता है, हर स्टेट में खबर लेकर के हम लोग बैठ करके मशवरा करेगा क्या लेना चाहिए डिसीजन। हाँ, लेकिन असम की अगर बात करें तो अपर असम में अभी हमारा जो खबर आया है वहाँ पे मौसम साफ है, आसमान साफ है। वहाँ से कोई खबर आप लोगों के पास आया? अभी थोड़ा देर पहले फ़ोन आया था अपर असम से, हम लोग का सूरा कमेटी का मेंबर है, उन्होंने फ़ोन किया है, उन्होंने देखा है वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई चांद निकलने का चांस नहीं है, क्योंकि वेदर ख़राब है वहाँ पर भी वेदर खराब है। लेकिन हाँ, अभी तो ऐसा ही है कि आसमान पूरा बादल से भरे पड़े है, तो यहाँ का जो हिलाल कमेटी है वो दूसरे हिलाल कमेटी दूसरे कमेटियों के ऊपर ही निर्भर है कि कहाँ अगर चांद दिख जाए वो खबर आ जाए, और उसके बाद ही ये लोग ऐलान करेंगे। ठीक है गुंजन, हम आपसे बात करेंगे, आप जुड़े रहे हैं हमसे। नाज़रीन, गुवाहाटी में इस वक्त आसाम में तकरीबन बादल छाए हुए हैं, बहुत ही कम जो है तवक्को है वहाँ पर, मतलब साफ ना होने की वजह से। आइए रांची से इस वक्त नौशाद से बात करते हैं। जी नौशाद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि मौसम जो है वो साफ नहीं है। कौन आपके साथ मौजूद है इस वक्त, और क्या मालूमात है इस वक्त अब तक आपके पास? ठीक है, देखिए काजिम, मौसम तो बिल्कुल साफ नहीं कहा जा सकता है। कुछ जो है ना आसमान साफ हुए हैं, अब्र का जो टुकड़ा था आसमान पे जो छाए हुए थे वो कुछ साफ हुए हैं। अभी इम्कान है, अभी चूंकि फौरी तौर पे कहिए कि अभी गुरूब आफ्ताब हुआ है, अभी लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया है। अभी आसमान को हम फिर से एक बार कहेंगे कि अपने कैमरामैन संजीव को कि वो आसमान की तरफ वो कैमरे को ले जाए और दिखाए कि किस तरह से आसमान की कैफियत है और वो रंगत है, और वो चांद का वो लोग तलाश करने में जुटे हुए हैं, और बादल के अंदर भी छुपा हुआ हो सकता है चांद, तो वो कोशिश जारी है। लेकिन अभी तक वो इम्कान रोशन नहीं हुआ है, चूंकि बादल जो है अब्र का टुकड़ा है वो आसमान पे छाया हुआ है। हमारे साथ कई जो है मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब अगर यहाँ पे अभी चांद का दीदार नहीं हो पाता है तो किस तरीके से जो है वो शहादत मिलेगी, उसका फैसला लिया जा सकता है। यहाँ पे अभी चूंकि आसमान में बादल छाया हुआ है, और ये तो पूरे हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान का मामला है। कहीं भी जहां अब्र आलूद नहीं होगा, आसमान साफ होगा, वहां पर जब चांद नजर आ जाएगा तो शरई नुक्ते नज़र से वहां से शहादत मंगाई जाएगी। उसके बाद फिर नमाज ईद उल फित्र का इदारे शरिया की जानिब से ऐलान किया जाएगा। अभी तक तो कहीं कोई खबर नहीं है चांद देखे जाने की। अभी इंशाल्लाह कुछ देर के बाद किस तरह से तजस्सुस है चांद देखने को लेकर के, और क्या इम्कान है, जिस तरह से सऊदी और खलीजी ममालिक में चांद का दीदार हुआ है कल और आज वहाँ ईद मनाई गई, तो क्या इम्कान है? देखिए, जहाँ जहाँ पे चांद नजर आया वहाँ लोगों ने ईद मनाई है। ये हमारे हिंदुस्तान का मसला है। जब तक चांद नजर आएगा नहीं या शरई शहादत हम लोगों को मिलेगी नहीं, तब तक हम ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। इदारे शरिया के तमाम कारवान लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं चांद नजर आ जाए, और अगर चांद नजर नहीं आ सकता है
صبح یا بھارت کے کسی کونے میں بھی اگر چاند نظر آتا ہے تو انشاءاللہ شہادت منگانے کی کوشش کی جائے گی. ابھی جو ہے انتظار کیا جا رہا ہے کاظم، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابھی کتنے وقت تک جو ہے یہاں پہ میٹنگ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور کب تک فیصلہ لے سکتے ہیں؟ اصل ادارے شریعہ کی جانب سے ریاست کے دیگر حصوں میں بھی انتظام کیا گیا ہے چاند دیکھنے کا. چونکہ شہر رانچی میں جو ہے مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے یہاں تو ابھی تک چاند نظر نہیں آیا ہے، لیکن اور دیگر ریاست کے حصوں میں جہاں اہتمام کیا گیا ہے، مثلاً اپ راجدھانی دمکا، وہاں مفتی شہید الرحمان صاحب ہیں، وہاں پہ مطلع صاف ہے، ابھی ان سے بات ہوئی ہے، وہاں بھی اہتمام کیا گیا ہے. یعنی ریاست کے دوسرے علاقے میں مطلع صاف ہے، وہاں سے امکان روشن ہے. کاظم، ان کا واضح طور پہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ریاست کے دیگر جو حصوں میں مطلع بالکل صاف ہے، وہاں سے خبریں آنی ہیں، جو ذمہ دار شخصیات کو متعین کیا گیا ہے وہاں سے وہ خبریں موصول کریں گے اور یہاں پہ وہ میٹنگ کا اہتمام کریں گے اور حتمی فیصلہ لیں گے. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں مزید آپ سے ہی تفصیلات حاصل کریں گے. بہت شکریہ نوشاد، آپ بنے رہیں، ہم آپ سے پھر بات کریں گے. ناظرین، وقت ہو چلا ایک وقفے کا. انشاءاللہ آپ کے شہر میں کیا صورتحال جاننے کے لیے نیوز 18 اردو پر دیکھتے رہیے ہلال عید پروگرام. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہلال عید. ملک کے مختلف شہروں سے ہم نے نمائندوں سے اپنی بات کی. کہیں پر مطلع صاف ہے تو کچھ جگہوں پر ابر آلود بھی ہے، لیکن اطلاعات آنے کی توقع ہے. کہاں سے ہے یہ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے رانچی میں بات کر رہے تھے. رانچی میں صورتحال مطلع ابر آلود ہونے کی بتائی گئی. انشاءاللہ العزیز کولکتہ میں مطلع صاف بتایا گیا ہے. گوہاٹی میں بارش ہو رہی ہے. جے پور میں مطلع صاف ہے اور ممبئی میں مطلع صاف ہے. سری نگر میں مطلع تھوڑا سا ابر آلود ہے. بنگلورو میں بھی مطلع تھوڑا سا صاف بتایا گیا، جزوی طور پر ابر آلود بتایا گیا. ہم نے اپنے نمائندوں سے بات کی. مزید اس سلسلے میں معلومات حاصل کرتے رہیں گے. آئیے ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب، چاند اور سورج کے جو اوقات رکھے گئے ہیں مختلف، تو کلام مجید نے کیا اس کا کوئی تذکرہ ایسا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں چاند اور سورج کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. ستاروں کا اور آسمانی سارے حقائق کو قرآن پاک میں واضح کیا گیا ہے. چاند و سورج سے متعلق بہت سی ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اس کو اپنا معبود مت بناؤ، اس کو اپنا مسجود مت بناؤ. اور پھر فرمایا گیا الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج دراصل وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں. ان کے ذریعے سے اوقات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اسی کو قرآن پاک میں سورہ رحمان میں بیان کیا گیا ہے، الشمس والقمر بحسبان. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں کچھ حضرات نے سوال کیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں. آپ فرما دیجیے قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ فرما دیجیے کہ وہ لوگوں کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہیں اور حج کے موسموں کا پتہ دینے کا ذریعہ ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ چاند اور سورج دراصل مسجود و معبود نہیں ہے، بلکہ وہ خلق خدا کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا پیدا فرمایا ہے. جہاں وہ روشنی بکھیرتے ہیں، چاندنی سے ٹھنڈک چاند ٹھنڈک بکھیرتا ہے اور ٹھنڈی روشنی انسانوں کو فراہم کرتا ہے. سورج کی گرمی اور تپش سے بہت سے فوائد انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں، مادی منافع حاصل ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہیں ان کے ذریعے سے اوقات کا تعین بھی ہوتا ہے. جی مفتی صاحب، بات کریں گے مزید اس سلسلے میں. اس وقت کولکتہ سے شبانہ ہمارے ساتھ جڑ گئی، ان سے بات کرتے ہیں. جی شبانہ، کولکتہ میں کیا صورتحال اس وقت؟ ابھی آپ نے بتایا اس وقت افطار کا وقت ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں نماز ہو چکی ہے. کیا کہہ رہے ہیں علماء کرام؟ جی بالکل، نماز ہو چکی ہے، سال بھی ہو چکا ہے، نماز بھی ہو چکی ہے اور جس طرح سے خبریں آنا شروع ہوئی ہے کہ کچھ علاقوں میں چاند دیکھا گیا ہے، لیکن ابھی اس کی تصدیق جو ہے وہ ہونی باقی ہے. ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بنگال کے جو ساحل سندربن کا علاقہ ہے وہاں کچھ لوگوں نے چاند
देखने की खबर दी है, लेकिन अभी तक उस पर जो है वो कोई कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। हम इस ताल्लुक से बात करेंगे, हमारे साथ उलमा कराम भी हैं जो जुड़ चुके जो है हमारे साथ और जिनके पास ही ये खबर आई थी, जिन तक हम तक जो है ये खबर पहुंची है। तो हम चाहेंगे कि हम उनसे बात करें और वो हमें इस ताल्लुक से जो उनके पास क्या कुछ खबर आई है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है मौलाना अबू तालिब रहमानी। तो क्या कुछ खबरें आई हैं चांद के ताल्लुक से, क्योंकि कहा जाता है कि अगर चांद को निकलना है तो वो आसाम की वादियों में या फिर बंगाल के शहरों में देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यानी ये सच है कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका और खुसूसन जो मगरबी बंगाल और उसका मरकज़ी शहर कलकत्ता है, यहाँ सनसेट जल्दी होती है दीगर बम्बई और दिल्ली के मद्दे मुकाबिल। तो सूरज तो गुरूब हो चुका है और मगरिब की नमाज भी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि आसमान साफ नहीं है, मतलब अब आलूद है, तो लिहाजा शाम तक तो ठीक था, अभी जो है वो मगरिब से कबल कुछ तेज़ हवाएं चली और अब्र छा गया। कुछ बाज़ इलाकों से जो खबरें आ रही हैं मुसद्दिक़ा नहीं है, इसीलिए हम कुछ बोल नहीं पा रहे। दूसरे इलाकों से कुछ फ़ोन आए हैं चांद के मुताल्लिक़, कुछ गैर मुसद्दिक़ात खबर आ रही हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इन सब खबरों की ज़रा फिल्ट्रेशन हो जाए, हम मालूम कर लें और उसके बाद ही कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि अभी कोई ऐसी मजबूत इत्तला हमारे पास नहीं है कि जिसको मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। लेकिन चांद जो खबरें आ रही हैं वो चांद देखे जाने के बाद है। चांद से मुताल्लिक़ ही खबरें आ रही हैं, लेकिन जब तक उसके जो ज़वाबित हैं हम उसकी उस शराइत की पाबंदी नहीं करते हैं और ज़वाबित और उसूलों की पाबंदी नहीं करते हैं तो ऐलान बदल नहीं किया जा सकता। ये एक मुल्की मसला है, बहुत नाजुक मसला है, इससे रोज़े और नमाज का ताल्लुक़ है। लिहाजा मुजलत से नहीं और सब्र से और इत्मीनान से ये ऐलान करना चाहते हैं। बिल्कुल नाजुक मसला है और जैसे कि मौलाना अबू तालिब रहमानी कह रहे थे कि जब तक मुझे कोई खबर नहीं मिल जाती, तस्दीक नहीं जी, कितना वक्त लग सकता है खबर की तस्दीक के लिए, ये मालूम हो सकता है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर आप देखें कि मीटिंग चल रही है और हम फिर से एक बार मौलाना अबू तालिब रहमानी से कहेंगे कि वो बताएं कि आखिर कितना वक्त आप इंतजार। देखिए, मैं मुस्तकिल हम हमारे तमाम दोस्त अहबाब और इसके ज़िम्मेदारान जो रुयत हिलाल से मुताल्लिक़ हैं और जो मुस्तकियात और चांद के निज़ाम की महारत रखते हैं, वो सब मुस्तकिल काम कर रहे हैं। कुछ हज़रात यहाँ हैं, कुछ लोग दीगर जगहों पे बैठकर मैं मुस्तकिल राब्ते में हूँ, टेलीफोन पे टेलीफोन आ रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि ऐलान फौरी हो जाते हैं अगर रुयत आम्मा हो जाए और साफ नज़र आ जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रुयत तो देखी गई, चाँद देखा गया, लेकिन तस्दीक में बाज़ औक़ात बहुत वक्त लग जाते हैं और मैं समझता हूँ ये गलत नहीं है। किसी भी चीज़ को सही से बयान करने में अगर देर होती है तो ये मंजूर है, बजाय इसके कि जल्दी में कोई गलत बात चली जाए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि 15 मिनट में ऐलान हो जाएगा या 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि अब पहले की तरह सूरत हाल नहीं होगी कि रात के 11 बजे और 1 बजे ऐलान किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि कुछ हम भी मुतहर्रिक हो गए, कुछ आप लोग पीछे लगकर और मुतहर्रिक कर दिए। चांद की खबरें आ रही हैं, हालांकि वो जो है खबरें उसकी तस्दीक पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन ये कुछ लोगों के अंदर ये मतलब ये हो गया होगा कि चलो भाई कल ईद है, और जो एक अमूमन होता है कि चांद आज के दिन जो है वो चांद की खबर मिलते ही ख़वातीन खासकर जो है वो बाजारों में दौड़ लगाती हैं, तो वो दौड़ शुरू होगी। तो ऐसे असल में क्या है कि हम हिंदुस्तानियों का एक बड़ा लतीफ़ा ये है कि अगर सऊदी अरब में ईद हो गई तो इन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिए और ये कहते हैं बस अब यहाँ ईद होनी है। ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में बाज़ दफ़ा कभी बिल्कुल सेम डे ईद हो जाती है सऊदी अरब और हिंदुस्तान में, कभी 1 दिन का फ़र्क होता है और कभी 2 दिनों के भी फ़र्क होते हैं। हम बहरहाल अल्लाह के हुक्मों के पाबंद हैं, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब के पाबंद नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह इंतज़ार करेंगे। हमारा मुल्क प्यारा हिंदुस्तान बहुत अज़ीमुश्शान बड़ा विशाल देश है। कोने कोने किसी भी कोने में हमारे कोई भी भाई बहन चांद देख लें और अगर तस्दीक के तमाम उसूल और ज़ाब्ते को पूरे हो जाते हैं और बात सही समझ में आ जाती है तो ईद आराम से करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे भारत में और हमारे देश हिंदुस्तान में अमन और शांति अता फरमाए और बड़ी खुशियों के साथ सबको ईद नसीब हो। चांद गर्चे के अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ईद मुबारक तो कह ही सकता हूँ। कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक्साइटमेंट जी शबाना जी, हम बात करेंगे आपसे। अभी तस्दीक नहीं हुई है, कोलकाता के दूर के इलाकों में से कुछ खबर आई है कोलकाता तक, लेकिन उलमा ने इसकी तस्दीक नहीं की है। नाज़रीन, जैसे ही तस्दीक होगी इस बात की इत्तला दी जाएगी। इस वक्त पटना चलते हैं, महफूज आलम वहाँ पर मौजूद हैं। जी महफूज, क्या सूरत हाल है? मतला साफ है, आपने बताया, क्या कह रहे हैं उलमा इकराम वहाँ पर? देखिए, यहाँ रुयत हलाल कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है और तमाम फ़ोन की घंटियाँ बजने लगी हैं। काजिम, बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं यहाँ पे
कई तरह की खबरें भी लगातार आ रही हैं। हम बात करते हैं सीधे इमारत शरिया के नाज़िम मौलाना शिबली साहब से। शिबली साहब, क्या अब तक की खबर है? लगातार तमाम जगहों से फ़ोन की घंटी बजने लगी है, आ रही है। बहुत सारी वो जगह हैं जहाँ सूरज गुरूब नहीं हुआ है, उन जगहों को छोड़ करके जहाँ सूरज गुरूब हो चुका है वहाँ से लोग अब रास्ते में आ रहे हैं और इत्तला दे रहे हैं। लोग अपनी अपनी तहकीक में लगे हुए हैं। जैसे ही तहकीक आएगी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो अब तक कहीं से कोई खबर आई है? मुफ्ती साहब, आप क्या बताएंगे? इमारत शरिया के हेड मुफ्ती हैं, आप बताइए, कहीं से कोई खबर? अभी कहीं से कोई खबर इस तरह की नहीं आई है। हम लोग तहकीक में लगे हुए हैं, खबर आएगी तो इंशाल्लाह बताएंगे। तमाम जगहों पे जो है आप लोगों ने लगा रखा है लोगों को, मुख्तलिफ ज़िलों में ही नहीं, बिहार के दूसरे सूबों में भी जो है आपकी तैयारी है। इमारत शरिया का दायरा कार जहाँ तक है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल, वहाँ तो है ही। पूरे मुल्क में जो भी रुयत हिलाल कमेटी है वहाँ से हम लोग राब्ते में हैं और जैसी इत्तला होगी आपको। देखिए कादिम, इमारत शरिया की रुयत हलाल कमेटी की मीटिंग चल रही है और तमाम जगहों पे इमारत ने राब्ता बनाकर रखा है कि कहीं से भी कोई जानकारी किसी तरह के भी चांद के सिलसिले में आए तो उसकी तस्दीक की जाएगी और बाद में जो है उस पर फिर ऐलान किया जाएगा उस सिलसिले में, अगर कहीं से कोई जानकारी आती है तो। अभी तक की सूरत हाल ये है कि बिहार के तमाम जगहों से राब्ते में हैं इमारत शरिया की रुयत हलाल कमेटी राब्ते में, लेकिन कहीं से किसी तरह की कोई जानकारी चांद के सिलसिले में अब तक नहीं मिल सकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं, तहकीक जारी है, मुमकिन है कहीं से कोई खबर आवे तो फिर जो है ये चीजें जो है फिर जो है उसको महफूज आप बने रहे। हम आपसे बात करेंगे। इस वक्त रांची से नौशाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नौशाद, बताइए क्या सूरत हाल है, क्या कह रहे हैं उलमा इकराम? देखिए काजिम, अब तक जो है वो जो चांद देखने की कहीं से भी शहादत नहीं मिली है, कहीं से दीदार नहीं हो सका है। अभी रांची में यहाँ पे उलमा इकराम लगे हुए हैं और दीगर जो जिम्मेदार शख्सियात को लगाया है उन्हें 40 मकामात पे झारखंड के, वहाँ से भी वो खबर मुसलसल ले रहे हैं, लेकिन कहीं से वो इत्तला नहीं है चांद देखे जाने की। चूँकि रांची में मौसम ख़राब है और गुरूब आफ्ताब के बाद से कहा जाए काजिम तो आधे घंटे से ज़्यादा का वक्फा गुजर गया है। अब यहाँ पे पूरी तरह से समझिए कि अंधेरा छा गया, आसमान भी साफ तौर पर जो है दिख नहीं पा रहा है। तो ऐसे में अब जो है चांद देखने का इम्कान बिल्कुल नहीं है। दीगर जो इलाके हैं वहां पे मौसम साफ है, मतला साफ है, लेकिन वहां से भी चांद देखे जाने की कोई शहादत नहीं मिली है। अब उलमा इकराम लगातार मुसलसल जो है वो राब्ते में है। यहाँ इदारा शरिया के उलमा इकराम भी है और चूंकि इमारत शरिया चूंकि मरकजी दफ्तर जो है पटना में है, लेकिन झारखंड में भी जो उनके इंतजाम किए जाते हैं इमारत शरिया की जानिब से भी, वहां से भी कोई इत्तला नहीं है। दीगर जो अंजुमन जाफरिया है, उसके अलावा अंजुमन इस्लामिया है, उनके भी जो कमेटियां हैं रुयत हिलाल कमेटी, वो भी जो है ना वहाँ वो लोग भी अपने मीटिंग के लिए बैठ चुके हैं और वो खबर ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी किसी कोई इत्तला नहीं है ईद के चांद देखे जाने की। काजिम जी नौशाद, हम इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात आपसे हासिल करेंगे। अभी हमने शबाना से बात की थी, वहाँ पर इत्तला मिली है कि लोगों ने आरिफ आलम इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ गए। नाज़रीन बात करते हैं। जी आरिफ, कहाँ पर हैं इस वक्त आप और अहमदाबाद में कितने बजे इफ्तार का वक्त होता है? उलमा से बात की है आपने, वहाँ के क्या कहना है उन लोगों का? जी काजिम, जिस तरीके से बताएं अहमदाबाद की अगर बात करें तो इस वक्त अहमदाबाद का शाही जामा मस्जिद जो है वहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पर चांद कमेटी की ऑफिस है। इस वक्त हमारे साथ में चांद कमेटी के अध्यक्ष जो हैं मुफ्ती शब्बीर साहब, वो खुद जुड़े हुए हैं। उनसे ही बात करते हैं और जानने की ये कोशिश करेंगे कि कब चांद होने की उम्मीद जताई जा रही है और क्या वक्त रहेगा। मुफ्ती साहब, ख़ास तौर से अगर ये बताइए चांद की क्या उम्मीद है और कितने बजे यहाँ पर इफ्तारी होगा, उसके बाद में कब तक चांद के नज़र आने की उम्मीद जताई जा रही है? यहाँ आज इफ्तार का टाइम 7:25 पे है, तो मेरा अंदाज़ा है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो 7:45 बजे तक चांद हम लोग देख लेंगे और 8 बजे तक इंशाल्लाह डिक्लेयर हो जाएगा। कल जैसे हमारी आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि इफ्तार के टाइम और चांद के टाइम में बहुत कम वक्त रहता है, तो ऐसे में रोजेदार जो हैं वो इफ्तारी को इफ्तारी समझ के इफ्तारी करें और उसके बाद में चांद देखने का एहतमाम करें। कितना वक्त मिलेगा और किस तरीके से उसको देखने का वक्त? हाँ, इसलिए कि आज सूरज गुरूब होने और चांद के गुरूब होने में सिर्फ 1 घंटे का फासला है। अब मान लीजिए कि 7:22 पर यहाँ आफ्ताब गुरूब है, तो 8:22 पर चांद गुरूब हो जाएगा। अब अगर हम वो लंबी चौड़ी इफ्तारी में लगे रहें तो 15 मिनट उसमें निकल जाता है, 25 गोया 40 हो गया। अब उसके बाद जो है 15 मिनट नमाज में आप रख लें,
तो 8 बज गए। अब 8 बजते बजते चांद जो है बहुत नीचे चला जाएगा। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि इफ्तारी ऐसी जगह पर करें जो ऊंची जगह हो, साफ हो, आप और मुख्तसर इफ्तारी करके आप चांद देखने की कोशिश करें, और नमाज भी पढ़े तो जितनी जल्दी हो नमाज से फारिग होकर चांद को देखें। यहाँ पे मीटिंग वगैरह का भी एक सिलसिला चलता है और तमाम अरकान यहाँ पर जमा होते हैं। वो मीटिंग कितने बजे शुरू होती है और किस तरीके से पूरा निजाम होता है उसका? अब उसमें देखिए, अगर चांद होगी या रुयत आम हुई तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर रुयत आम नहीं हुई, कहीं से हमको शहादत लेनी है, कुछ खबर आई, तो उसके लिए हम लोग इंतजार करते हैं, 1-2 घंटा इंतजार करते हैं, उसके बाद डिक्लेयर करते हैं। जी नाजिम, इस वक्त हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ का जो आसमान है उसको दिखाने की कोशिश करें, और ये बताएं कि जिस तरीके से रांची वगैरह को देखा तो वहाँ पर बारिश का मौसम था और बादल छाए हुए थे आसमान में, लेकिन अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद का आसमान जो है बिल्कुल साफ है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर चांद होता है तो 7:25 जो इफ्तार का वक्त है उसके बाद में चांद होने की उम्मीद जताई जा रही है। और यहाँ के जो जामा मस्जिद के चांद कमेटी के अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो वक्त है उस वक्त पर लोग चांद देखने का एहतमाम करें, क्योंकि अक्सर होता ये है कि लोग चांद कमेटी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन लोग भी चांद देखें और जिस तरीके से उनको चांद दिखाए वो गवाही भी दे। तो कहीं ना कहीं रमजान का ये 29वां रोजा है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है, और जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद में पूरे अहमदाबाद से लोग इफ्तारी करने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं आज लोग जो है उनकी उम्मीद यही है कि आज आखिरी रोजा होने वाला है, चांद होने वाला है, तो कहीं ना कहीं रोजेदारों के चेहरे पर भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी आरिफ, हम आप बने रहें, हम आपसे इस सिलसिले में और तफसीलात हासिल करते रहेंगे। आपने बात की मुफ्ती साहब से, उन्होंने बताया है कि एहतमाम किया जा रहा है चांद देखने का, लोगों से भी अपील की गई है कि वो जो है चांद देखने का एहतमाम करें ऐसे मकाम पर जो ऊंचे इलाके हों। गुफ्तगू नाजरीन हम नुमाइंदों से भी कर रहे थे, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे थे चांद और सूरज के जो है कलाम मजीद में जिसका जिक्र आया है। क्या मतला एक कहलाता है बड़े सगीर में जो हिंद पाक हैं ममालिक एक ही हैं, ये तो इस पर क्या अहकामात हैं मुफ्ती, मुख्तलिफ हो सकता है या एक ही हो सकता है? इस वक्त हमारा तस्वुर मुनक़सिम हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक दौर था कि पूरा हिंदुस्तान मुत्तहिद था, दूर दूर तक इलाका था हिंदुस्तान का। उस दौर से भी ये हकीकत मानी गई है कि बरसगीर हिंदो पाक का मतला तकरीबन एक है, इल्ला माशाल्लाह किसी इलाके में इसके ख़िलाफ़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा यकीनी बात यह है कि अक्सर इलाके बरसगीर हिंदो पाक के एक ही मतला शुमार किए जाते हैं। यह इसलिए भी कि इनके दरमियान औक़ात में ज़्यादा तफावत नहीं है। जहाँ वक्त में तफावत ज़्यादा नहीं होता है वहाँ मतला एक होता है, और जहाँ तफावत ज़्यादा हो जाता है वहाँ से मतला बदल जाता है। जी मुफ्ती साहब, इस वक्त मुंबई से हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मुंबई से इस वक्त मोहिउद्दीन मौजूद हैं। मोहिउद्दीन, क्या सूरत हाल है? अभी आपने बताया मतला तो बहुत साफ है और एहतमाम भी किया जा रहा है। जिस इलाके में चांद कमेटी है वहाँ पर तो आप नहीं पहुँच सकते, क्या इत्तलात आ रही हैं वहाँ से आपको? जी देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया काजी भाई कि जो चांद देखने का की जो कमेटी बैठती है वो बाद नमाज मगरिब बैठती है, और थोड़ी ही देर में जो है वो मगरिब की अजान होने वाली है, इफ्तारी का वक्त होगा। इफ्तारी के बाद जो है ये कमेटी बैठी कि हमने जो है वो चांद कमेटी के जो मेंबरान है उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि मतलब जो है वो मगरिब की नमाज के बाद चांद कमेटी बैठेगी, और उन्होंने जो है वो शहादत के लिए इत्तला कर दी है। उनका ये कहना है कि अंडमान के इलाके में जो है वो वहाँ पर चांद दिखाई दिया है, जिसकी बुनियाद पर ये इस बात के कभी इम्कानात है कि मतलब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो चांद दिख सकता है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि मतलब मुंबई का जो मसला है वो फिलहाल जो है वो नीम अब्र आलूद हो चुका है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि मतलब बादल जो है वो छा गए हैं पूरे आसमान पर। इससे पहले जो है वो सूरत हाल दीगर थी, और फिलहाल जो है वो सूरत हाल इस तरह की हो गई है। तो मुंबई की रूरत हाल कमेटी जो है वो पूरी तरह जो है वो डिपेंड हो चुकी है कि किस तरह से जो है वो बाहर के इलाकों से शहादत ली जाए और उसकी बुनियाद पर चांद का ऐलान किया जाए। हम आपको बता दें कि रूरत हाल कमेटी जो है जी
محی الدین، آپ کی گفتگو صاف طور پر نہیں پہنچ پا رہی ہے، ہم آپ سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے، آپ بنے رہیں تھوڑی دیر میں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ممبئی میں بھی افطار کا جو ہے وقت ہوا چاہتا ہے اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہو رہا ہے، تھوڑا سا بادل بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے انڈمان کی بات کی، ناظرین جزائر کی، جہاں پر چاند نظر آیا تھا، لیکن علماء نے ابھی تصدیق نہیں کی ہے۔ کولکتہ سے بھی یہ اطلاع آئی تھی، شبانہ نے جب بات کی ہم سے تو بتایا کہ علماء کی تصدیق ہونی باقی ہے۔ وہاں کے مغربی بنگال کے جو علاقے ہیں، چند علاقوں میں جہاں پر مطلع صاف تھا وہاں پر چاند نظر آیا تھا، لیکن ابھی علماء نے تصدیق نہیں کی ہے۔ اس کی تصدیق ہونے کے بعد عام طور پر اعلان کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے نمائندے ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب بات کر رہے تھے مختلف ہونے کی مطلع، ہند و پاک کے جو مطلع سے متعلق بات کر رہے تھے۔ ہند و پاک کا مطلع تو تقریباً بالاتفاق ایک ہی ہے۔ اگر یہاں چاند ہو جاتا ہے تو وہاں کے لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے، وہاں چاند ہو جاتا ہو تو یہاں کے افراد بھی اس کو تسلیم کر لیں گے۔ جی مفتی صاحب، ابھی گفتگو میں بات چیت ایسی بھی ہوئی ہے جی مفتی صاحب کہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، جی مفتی صاحب، ایسے میں ہم کو جدید چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ استفادے کی صورت انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اگر کہیں شاید چاند کی رؤیت ہو جاتی ہے تو شہادت کیسے لی جائے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی پلین میں بیٹھ کر آئیں اور آ کر گواہی دیں۔ جی تو ناظرین گرامی، اسلام نے ایسی چیزوں کی تکلیف نہیں دی ہے۔ اب فرض کر لیجئے اگر کسی نے دلی میں چاند دیکھا ہو اور شہادت دینے کے لیے وہ حیدرآباد پہنچنا چاہے تو فوری پلین کا ٹکٹ مل جائے، یہ کہاں ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، اور ٹکٹ مل بھی جائے۔ جی مفتی صاحب، جی اس وقت چونکہ پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، اس سلسلے میں ہم تفصیلات بعد میں حاصل کریں۔ ہم بہت مشکور ہیں مفتی صاحب آپ کے، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین، چاند کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو نیوز 18 اردو پر اطلاعات دی جاتی رہیں گی۔ اپنے میزبان سید کاظم شرفی ہلالی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔